हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज की बड़ी खास पॉडकास्ट है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में एक नहीं दो नहीं तीन सुपरस्टार्स पाकिस्तान के मौजूद हैं। एक तो मैं हुई, माहिरा खान और फहद मुस्तफा आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी नई फिल्म आने वाली है क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद ईद-उल-अज़हा पे। नबील कुरैशी की फिल्म हमेशा बहुत ज़बरदस्त होती है, सो आई हैव रियली हाई होप्स। उनके साथ बड़ी मजे की डिस्कशन की। फिल्म के बारे में तो बात की ही की, लेकिन उसके साथ साथ जर्नी ओवरऑल कैसे रही, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी के ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत बात की और बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें इसमें मौजूद हैं। आइए पॉडकास्ट देखते हैं। Fahad, Mahira, thank you so much for being here, and you guys look lovely as always. Thank you for having us. My pleasure. Quaid-e-Azam Zindabad. What's that about? That was good. It's just direct. है ना? Quaid-e-Azam Zindabad. What is it about? Quaid-e-Azam Zindabad is about Pakistan because you see filmmaking is all about narrating different kind of stories. कोशिश करें आपके अपने रीजन की, अपने खित्ते की कहानी आप सुनाएं. सही. So as you know, it's a cop film. उसको आपने किस डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए क्या नयापन हो. कॉप फिल्म्स मोर और लेस आपको सेम सेटअप पे नज़र आती हैं, बट व्हाट्स द स्टोरी. तो हम पाकिस्तानी की बात करते हैं, जब पाकिस्तानी सिनेमा की बात करते हैं, जब तक हम अपनी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तब तक कुछ अलग नहीं होगा. सो आई थिंक ये वो कहानी है जो हर पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो इससे डेफिनेटली रिलेट करेगा और इन्जॉय करेगा, एंटरटेन होके जाएगा. दैट्स द I was reading comments, तो उसमें से obviously trailer doesn't give away much कि उसमें क्या चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे comments ये थे कि oh, is it like Singham, is it like Dabang? So उसके बारे में क्या कहेंगे? Why not? It is. I hope कि वैसी हो और उससे बेहतर हो, बिकॉज हर मुल्क और हर रीजन चाहता है कि उनके अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हों. सो आई होप कि गुलाब जो है उस लेवल पे पहुँचे. हमने कोशिश की है, लेकिन उसमें तड़का आपको सारा पाकिस्तानी नज़र आएगा. बहुत मज़ा आएगा आपको. So Mahira, how was your experience working for this movie so far? You know, I was just thinking before I answer this, I've never seen a cop film. Like कभी भी कोई भी नहीं, Beverly Hills Cop भी नहीं. Oh, I've seen Beverly Hills Cop, but I've never seen these ones. Yeah. Even Beverly Singham. Hills Cop, I think I must have seen it like ages ago. I actually am not. So even when people tell me that it's like this or it's like that, I have no clue. Yeah, he didn't mention Simba though. See, there are lots of films. Simba na? also Singham. I've not seen. हाँ, Simba का भी comment So आ रहा who's था. copying who? So nobody knows. Well, you're right. Actually, a cop film, if you're going to put on a Yeah. uniform and you're going to have all these, हाँ, डिशुम. yeah, dishcom, then it's going to be the same. You're absolutely right. Anyway, so your question was how has it been? It's been amazing. It was smooth sailing. I obviously in the beginning I was just like, okay, so this is a team I've never worked with. We were gonna work a lot of times. We came close to working a lot of times. So there was this thing of we both wanna. When I say both, like us, Nabil, Fiza, me, we really wanted to work with each other. And of course, he comes with Nabil and Fiza, right? I'm a package deal. No? It's a package deal. So it's that reminds me of Sofa Cum Bed also. Anyway, so I don't know. Everything is reminding me of Sofa Cum Bed. चलो. Sofa Cum Bed? आने वाला. Like why? You know, some things are just like 2 in 1. Okay. This is that package. अच्छा, No, I'm अच्छा. joking. It's another joke that we spoke about. So. It's an inside joke. So yeah, it was really like the first few days I was like, how will I fit in? You know, I usually work with a lot of people I've been working with, you know, and I am a creature of comfort. But it was smooth. बहुत मज़ा आया. Obviously जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, somehow something else comes out of you because they are seeing something that you haven't seen in yourself, or another director hasn't seen in you, or an actor hasn't. Yeah. So you're reacting differently, you're acting differently. So it was really, really good. So like the overall vibe of the movie is very animated, and we've seen you like अगर हम backtrack करें आपका career, so you haven't done these kind of movies. तो आपका ये वाला experience, like were you comfortable with doing something like this, या आपको लगा कि this is something you can pull off? Yeah. Yeah. Because I'm animated in real life. Right. So it's very that's easy for me when I think about it. But actually, can I tell you something? Drama is quite. If you, any actor will tell you this. That drama is still easy, है
ना? Very easy. क्योंकि उसमें आप चीखें या बहुत ज़्यादा रोएं तो उसमें you can get away with it also. But being animated but still being believable and doing it naturally, there's a thin line which you shouldn't be crossing. And I doing think. simpler things, I think it's Simpler more things complicated. is more complicated. Playing a certain character or a certain type, वो थोड़ा आसान हो जाता है. सही. अच्छा, हम अक्सर देखते हैं हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वो ज़ाहिर नाम कमाते हैं, मगर हम फिल्मों में वही चीज़ क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर पाते उस तरह से? कर पाते हैं. एटलीस्ट देखें जितनी फिल्में माहिरा ने की हैं, जितनी फिल्में मैंने की हैं, जितनी 2-4 और एक्टर्स हैं उन्होंने की हैं, वो सारी वही फिल्म है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आज थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है. बट या वी ऑलवेज से दिस, और हम पिछले मैं स्टोरी लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिस तरह के स्टोरीज हम समटाइम्स यू गेट इट राइट, समटाइम्स यू डोंट. सो आई थिंक इफ वी मेड 25-30 फिल्म्स ऑफ आउट ऑफ विच 12-13 फिल्म्स आर एक्चुअली सक्सेसफुल, दे हैव डन सो गुड. तो आई थिंक मोर द मैरियर, ज़्यादा फिल्में आप बनाएं. ऑल्सो आई थिंक कि ड्रामे अगर आप देखें, इतने सारे ड्रामे बनते हैं. एक्चुअली हमारे पास टीवी इंडस्ट्री है ना, वहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री भी चली गई. When I was a VJ, there was a music industry. I swear every day there used to be some song coming in, and there was a whole thing कि आज ये नहीं लगेगा, आज ये play होगा. It was a thriving industry. Now we don't have a music industry. We hardly have a film industry, unfortunately. We do have a TV industry. What happens is कि जब आप इतना सारा content churn out कर रहे होते हैं, तो there's a very high probability that good content will also come out of that, right? I mean, actually, not everything on TV is true. I agree with you. Right? I also feel that our film is much more progressive than our TV. Very quick. Progressive also. Wouldn't you agree? And can I add this के अच्छा nice. तो मैं आपको बताऊं, जो गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तानी टेलीविज़न भी हम कहते हैं, कितने ड्रामे याद हैं आपको? कभी किसी ने सोचा? कोई 8 से 10 ऐसे ड्रामे हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. दिस इज़ द स्पैन ऑफ 40-50 ईयर्स वी टॉकिंग अबाउट. तो अगर आप ये कहें तो सिर्फ एक मेरा अपना जो प्रोडक्शन हाउस है ना, उसके 8 से 10 ड्रामे ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हिट हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम ठीक हैं. बस अब आज से 40 साल बाद आप मेरे इन ड्रामों के बारे में बात कर रहे होंगे. वो जो एरा था ना, जिस टाइम पे ये बनता था, वो बड़ा बेहतर था. आज इट्स बीन ऑलवेज द केस. बट या एवरीबडी इज ट्राइंग, और सिंस ज़्यादा काम हो रहा है, टेलीविज़न में बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारा अच्छा भी हो रहा है, बहुत सारा बुरा भी हो रहा है. But I do want to know where you were coming from, because that's interesting. I want to मैं understand. स्टोरी लाइन्स की बात कर रहा था, जैसे कि ड्रामों में हम बहुत सारे ऐसे एरियाज कवर कर जाते हैं जो कि अ लॉट ऑफ टाबू टॉपिक्स इज वेल. आई नो सिनेमा की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि कमर्शियल एंगल ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और वो एक पूरे साल की प्रोडक्ट होती है. ड्रामा रिलेटिवली कम टाइम लगता है बनने में. देखी थी आपने? नहीं, माहिमी. एग्जैक्टली, इसीलिए नहीं बनाई दोबारा. एग्जैक्टली. ये प्रॉब्लम है. बनता है, सब बन रहा है. It's just that कि when you have to pay for a certain thing and go out and buy a ticket and watch it, it's a different ball game altogether. So right now, since it's a smaller industry, it's evolving right now. So अभी आपको, मुझे लगता है कि आपको over the top, आपको cinematic experience वाली films दें, ताकि लोग घरों से निकल के अभी पहले आदत तो develop करें. तो जब आपके पास टॉप गन लगी हुई होगी ना साथ में, तो आप शायद मैरिज स्टोरी भी जाके साथ में देख लेंगे. आप मैरिज स्टोरी के लिए कभी सिनेमा में जाके नहीं देखेंगे. इट्स नॉट द काइंड ऑफ फिल्म, बट आई लव दैट फिल्म, बट आई वोंट गो एंड वॉच इट इन अ सिनेमा. आर यू गेटिंग? मैं टॉप गन देखने जाऊंगा. सो आई थिंक आपको पहले इस जॉनरा में जाना चाहिए. अच्छा, सो लाइक वो बात भी सही है आपकी कि सिनेमा की आदत नहीं है लोगों को, मगर सिनेमा की आदत डोंट यू थिंक कि तब लगेगी कि जब पूरा साल फिल्में आती रहेंगी, राइट? ये क्लस्टर एक साथ ईद पे 5 और फिर 5 महीने का गैप आ जाता है. आंसर्ड द क्वेश्चन रियली, व्हिच इज दैट वी नीड कंसिस्टेंट फिल्म्स कमिंग आउट. Obviously COVID happened, and it all just... We were not supposed to release this film on Eid, by the way. Okay. We had a plan. This was a 25th December release. Okay, Quaid-e-Azam से related. 2020, if I'm not wrong. So we've already made up our minds कि जी हम ऐसा करेंगे. But then again, that was a different time. Films आ रही थी, abundance में आ रही थी, चल रही थी.
अभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई फिल्म और हुमायूं's फिल्म, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो जो कि फिल्म रिलीज कर रहे हैं, एंड राइटली सो, बिकॉज ट्रिकी टाइम्स हैं. सो वो वाले फिल्म मेकर्स भी नहीं है जिनको बहुत बैंक कर रहे हो अपने आप पे, अपने नाम पे. अभी तो इट्स अ कॉम्बिनेशन. देयर इज माहिरा And you can also judge it by, I mean, as actors, right? You can imagine if we tell you that we used to get scripts all the time for films. You know, alhamdulillah, but like independent filmmakers, big filmmakers everywhere, you know? And I swear, even younger kids would come to me with, I have this idea and it's a film. Like, okay, now the same people are coming to you with a 5-part episode series, which they can somehow put on YouTube or whatever. Because cinema, to them, think about it. I mean, still big filmmakers still will say, okay, I have the skill, I have the pull, I can bring these actors in and I can make something big. Absolutely. And hopefully not lose money on it. But what about independent, small? डू यू सी अब जैसे स्पेशली आफ्टर कोविड हमारी जो एंटरटेनमेंट कंजम्पशन है उसकी आदतें बहुत चेंज हो गई थैंक्स टू नेटफ्लिक्स. आपके पास ये भी नेटफ्लिक्स चेंज हुई है ना, देखिए. ये भी चेंज हुई है. This is a नेटफ्लिक्स change. और नेटफ्लिक्स ने बहुत आदत बिगाड़ दी है कि आपने पिज्ज़ा घर पे मंगाना है और आपने एक ही रात में पूरा सीज़न फड़का देना है. तो इसमें फिर गाड़ी निकाल के सिनेमा जाना और फिर वैले में देना और फिर लिफ्ट से 4थे फ्लोर पे जाना और पॉपकॉर्न लेना, टू कम्बरसम. दिस इज़ अ डाइंग ब्रीड. देखें, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि आपको इसका एक नीश ऑडियंस हो जाएगी सिनेमा. जैसे मैं देखता हूँ, आपको सिनेमा में फिर वो चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि आपको वो एक्सपीरियंस देगी जिसके लिए आप घर से बाहर निकल के जाएं. अदरवाइज़ आप रन ऑफ द मिल सीधी सीधी कहानी और जो पैरेलल सिनेमा की जब हम बात करते हैं ना, वो लेके आप सिनेमा में नहीं जा पाएंगे. ऐसा मुझे लगता है. मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक्सपीरियंस है जो आप देंगे. जैसे मैंने अभी टॉप गन, आई वाज टेलिंग देम, आई सॉ टॉप गन 4D सिनेमा में. जब मैंने देखा, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, यू नो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ऑफ द फिल्म, बिकॉज मैंने टॉप गन पहली वाली मुझे इतनी याद नहीं. आई एम अ टॉम क्रूज फैन, बट व्हेन आई वॉच दैट फिल्म 4D, that took me somewhere else. They gave me that experience. You know, I want to go back again, and I thought to myself, I should watch Jurassic Park like that also. So they are so ahead of their times. You know, उनको समझ आ गई ये बात. अगर imagine Quaid-e-Azam में there are planes, there are bikes, there's fight sequences. आप अगर उसको 4D सिनेमा में देखेंगे, आप कहीं और चले जाएंगे. लेकिन मसला ये है Cinema कि experience is unmatched. That's true. Unmatched. That is true. Okay. And also the fact that, sorry, you can go with lots of people and experience it together. But what's interesting is, like you said, the niche audience, I feel like it's going to be, it's really as simple as, you know, which is hopefully what we'll start doing if only portals were coming here. And I think they should, about time. Because when I see content from other places, I'm like, we make, you know. Yeah. So what will happen is, hopefully, is that, let's say Quaid-e-Azam will do a deal with a portal, no matter what it is, Netflix, Amazon, whoever, before it releases. So it has a stint for a month in the cinema, and then it's gone on digital, which means the filmmaker, the producer is safe in a way that, okay, it's going to get the money of that, and it's going to do the month or 2 month stint in the cinema. And believe me, जो सिनेमा जाके देखना चाहता है वो निकलेगा और वो जाएगा. True. क्योंकि यहाँ भी टॉप गन वाज पैक्ड. बिल्कुल. Yes, I have. It was amazing. इसमें फाद मुझे बताएं, because you also run a production house. यहाँ पे जितने भी एक्टर्स आते हैं, फिल्म एक्टर्स आते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि एक आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है सिनेमा. फॉर अ फैमिली ऑफ 4, फॉर अ फैमिली ऑफ 6, अगर वो न्यूप्लेक्स जाएँ तो वो 5-6 हज़ार की पूरी एक पिकनिक लग जाएगी उनको. एंड इन करंट टाइम्स और जिस तरह का इन्फ्लेशन है उन लोगों को. बट देन यूर ऑल्सो अ प्रोडक्शन हाउस. आपको अपने भी देखने हैं, प्रॉफिट्स देखने हैं आपको. यू आर अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. तो इसमें फिर वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? या फिर आर यू गोइंग टू कट लॉसेस एज अ बिजनेस मैन, या फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों की दस्तरस में भी रहे फिल्म और बिजनेस जो है जिन्होंने लूज किया वो. बहुत अच्छी चीज़ की है. हमारी इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड सी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प. दिस इज़ अ बिग स्टेप. नोबडी इज़ एक्चुअली इवैल्यूएटिंग दिस कि ये कितनी बड़ी बात है, बट दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प. अब जब आप अगेन आप फिल्म जब बहुत सारे नंबर्स में बनाएंगे ना,
तो सिनेमा ओनर्स को भी ये ट्रस्ट आएगा कि यार देयर इज़ अ एक पूरा एक चल रहा है सिलसिला कि एक के बाद एक मेरे पास फिल्म आएगी. मे बी देन दे कैन सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि यार हम टिकट के पैसे कम करेंगे. आई स्टिल रिमेंबर 2019-2020 में देयर वर लॉट ऑफ न्यू सिनेमास जो कि अभी बन रहे थे, जिनको खुलना था. मैं आपको बताऊँ, मैं लाड़काना से हूँ एंड आई वाज टोल्ड इन लाड़काना ओनली देयर वर 4-5 सिनेमास जो कि बन रहे थे. नाइस. तो क्या होता, उन शहरों में जिसकी जितनी कैपेसिटी होती वो टिकट उतना रखते. अभी आप लोग बात करें टॉप गन, आपने देखी, अभी रक्शे वाले ने नहीं देखी है. तो वो देखता, अगर वो लगी होती, उसकी पहुंच में होती, तो ये तब होगा जब आपके पास एक तो इंडियन फिल्म चली गई हमारे पास जो कि बहुत रेगुलरली आ रही थी. हम अब रिलाई करने लगे हैं हम हॉलीवुड की फिल्म्स पे. बट अगेन हमने 2018-19 में 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था कलेक्टिवली. 3 फिल्म्स हमारी आई थी. दिस वाज हार्डली एन इंडस्ट्री, इट स्टिल इज. और 3 फिल्में अगर 100 करोड़ से ऊपर कर गई हैं, व्हिच मींस देयर इज अ मार्केट, देयर इज एन एपेटाइट. बट आपको बनानी पड़ेगी. एंड ट्रस्ट यू मी, अगर कोविड नहीं आता, ये फिल्म कब की आ चुकी होती. यही जो टीम बैठी हुई है, इनकी ही 3 फिल्में और आ चुकी होती. हाँ. और ऐसे बहुत सारे लोग होते जो और फिल्में बना चुके होते. राइट नाउ द ओनली इशू वाज कोविड. उससे अगर हम निकल गए और ये फिल्में रिलीज देख लेती हैं और अच्छा एक सिलसिला हो जाता है, आई थिंक हम दोबारा कर लेंगे. फहद, मुझे ये बताइए कि अभी आपने जैसे कहा आप नबील के साथ पैकेज में आते हैं, तो इज़ इट लाइक कि नबील कोई भी स्क्रिप्ट लाएं, यू हैव टू डू इट बिकॉज करना है, या फिर ये कि उसमें व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ देखो, स्क्रिप्ट? मैं उसका जवाब एक ये देता हूँ कि मैं और नबील ना एक जैसा सोचते हैं. हम एक उम्र के लोग हैं. मैं और फ़िज़ा तो तकरीबन, नबील फिर भी बाद में मिला है, मैं और फ़िज़ा बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को. तो हमारा प्रोसेस जो है ना बड़ा साथ रहा है. तो शायद कहानी की समझ, शायद प्रोजेक्ट की समझ एक जैसी है. तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये मेरे पास लेकर आया और मुझे समझ ना आया. कुछ चीज़ें हम सेट पे भी एंड ही रिस्पेक्ट के मेरा ओपिनियन क्या है, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर जो बहुत ज़्यादा आपको बताना शुरू हो जाए. इफ़ आई एम इन द प्रोजेक्ट तो मैं फिर बिलीव करके ही उस पर जाता हूँ. तो ये वाली बात, और मुझे ऐसा लगता है ही लाइक्स द वे आई एक्ट और उसके कैरेक्टर्स को मैं जैसे प्ले करता हूँ. बिकॉज अगर मुझे ऐसा लगता है ये लोग अगर एक्टर्स होते तो ये मेरे जैसे एक्टर्स होते. तो मे बी दैट्स वाई इनको समझ ऐसा भी तो होता है ना, अगर डायरेक्टर को आपकी एक्टिंग समझ नहीं आ रही है तो बड़ा मुश्किल. मैंने ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उनको उनकी शक्ल पे होता है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है, एंड यू कैन टेल, आपको समझ आ जाती है. और वही डायरेक्टर अगर उसको मज़ा आ रहा होगा ना, तो आपका भी जो एनर्जी और आपका जो एक सारा सिस्टम होता है ना, वो कहीं और चला जाता है. सो आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जब तक समझते हैं फिर. So I think you already have a chemistry as friends. Kind of, तो yeah. फिर वो No, we are not friends. Okay, you're not friends. Yeah, Okay. बिल्कुल. Sorry, Nabil. मैं लानत भेजता हूँ. Mahira, what's your process of accepting a script? Obviously आपने बड़े diverse roles किए हैं throughout. तो आप उसमें क्या देखती हैं? What do you look at? Do you look at the character? Do you look at the message it's going to provide? या कहीं आपको लगता है कि ठीक है मेरा कैरेक्टर इतना शायद बड़ा नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल मैसेजिंग है वो बड़ी. तो आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं? Every time it's something I have to say different. But मुझे लगता है एक चीज़ है, मुझे जब मैं नरेशन सुन रही होती हूँ ज़्यादातर उसी टाइम पे, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हूँ, सब बताएंगे आप. हाँ, ये है. और नो कहने में माहिर हूँ. सही. क्योंकि I don't know, it must be something about not trusting my gut, but I do. The minute I hear it, in that moment I do feel something. And with Quaid-e-Azam, that's what happened. मैं इनके ऑफिस में थी और इन्होंने 2 स्टोरीज मेरे सामने टाइप रख दी और कहा एक तो करनी होगी. एंड दे बोथ वर सो गुड. दैट्स द थिंग. इट वाजंट कि एक, दूसरी भी कितनी. आई लव दैट वन एज वेल. करेंगे इंशाल्लाह. सो वो, बट आई एट दैट पॉइंट आई न्यू दैट दिस कि ये जो है ना कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, ये एक जैसे कहते हैं ना, एक when we say this is a typical Woody Allen film, typical, so this is a typical Nabil Qureshi style film. So I wanted to be part of that. I loved what they were saying in it.
was like, यार ये मुझे करना है, मुझे इस तरह की स्टोरी का हिस्सा बनना है. That's what I. राइट. अच्छा माहिरा, एक चीज़, अभी आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की थोड़ी देर पहले. सो यू स्टार्टेड एज अ वीजे अराउंड 2006 आग टीवी. No, 2003, 4. No, 7 or 8. 7 or 8. Yeah. And then there was a gap. And then you did Humsafar in 12. In 11. In 11. ठीक, हाँ आया 12 में था आपने. No, it came in 11. अच्छा 11 So में. 2011 Bowl came, Humsafar came. So इस ये जो बीच में गैप था, इसमें were you reflecting like why was there this gap? Oh, I was having a child. Oh, okay. There's your answer, Namra. Yeah. Okay. Kौन? Cool. Who's Oh, yours? Namra. नहीं, Namra. I think she's outside. Namra, oh sorry. Okay. No, because actually, let me Right. tell you something. I was fully pregnant on Aag Okay. as well, by the way. Okay. While you were VJing. Ji. Really? Ji, हाँ. I was so young. I went there with my pregnant belly. Throughout, I was working. By the 7th month, I think, I had started to eat on live television. Oh, okay. You know? And it was not normal eating. ऐसा लग रहा था किसी को इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि I mean मैं फोड़ती थी खाना. I know. उफ. तो फिर मेरे प्रोड्यूसर्स ने आई थिंक यू शुड टेक लीव, you should go home now. I think you're about to have this I baby. know. सही. So but you know I didn't take a long break. I'll tell you what. Azlan was born September 2009. शोएब साहब ने मुझे फ़ोन किया एक हफ्ते बाद after Azlan was born. Okay. And I was on the sets of Bowl with my baby like in 5-6 months. Yeah. Wow. Yeah. That's fascinating. Yes. Oh, ये तो पता ही नहीं लोग. और मैंने शोएब साहब को कहा कि जब उन्होंने कहा ना मैं शोएब मंसूर बात कर रहा हूँ, I was like okay, this is weird. He's like मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसमें कास्ट करना है, ये वो. मैंने कहा एक्चुअली मेरा अभी बेबी हुआ है तो आप मुझे 2 दिन दे दें तो मैं आपको बताती हूँ, मैं पूछ के सबसे बताती हूँ. अच्छा मतलब बेबी से पूछ के. नहीं बेसिकली. तो उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है. That was my first interaction with this industry if you think about it. इससे तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है. हमारे ज़माने में तो सबके बच्चे होते थे और हम ख्याल रखते थे. आज भी होता. आज भी होते हैं but I know what you know it is. it was Yeah, I know. it was actually much more common back in the day. Yeah. Much more common. We got conservative lately. So yeah, and then I went there and shot. It was amazing. सही. Fahad, what's the best moment like during this shooting of Quaid-e-Azam Zindabad? कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स रहे या कौन से फन इंटरेक्शन रहे आपके आपस में या ओवरऑल सेट में? सॉरी मुझे अभी इस बात से याद आ गया कि मेरा बेटा पैदा हो रहा था जिस दिन. हम अपने बच्चों की बातें क्यों मुझे आपसे याद कर आ रहे गया. नहीं कोई मसला नहीं, मैं भी करता हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ और उस दिन मैं शूट कर रहा था. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं अपनी बीवी को सुला के और मैंने उसको बोला कि अब बस तुम्हारी थक गई हो तुम, बच्चा भी हो गया है तो अब मैं थोड़ी देर घर जा रहा हूँ चेंज करने. मैं चेंज करने नहीं जा रहा था, मेरा एक सीन था जो कि नबील ने प्लान किया हुआ था. दैट वाज द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म एंड दैट वाज द सीन इन विच मी एंड Mavish kind of kiss. No way. So it was not a kiss but मतलब but एक वो था. So then while I was doing that somebody came and see my wife and she woke up and she called me, where are you? मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ. And they told me वो घर पे तो नहीं है, हम घर से ही आ रहे हैं. So this became a huge issue. Of course. And then later she got to know कि that was the scene that I was shooting. तुम इसलिए भाग रहे थे, इसलिए तुम्हें आग लगी हुई थी. ये मुझे अचानक से याद है. ये बहुत एक दो डिफरेंट बच्चों की कहानियां हैं. तो ऐसा भी हुआ था. Right. So I was asking about कोई ऐसा fun interaction आपका शूट पे हुआ हो? Yeah, every day is fun while shooting. Shooting is my Eid, because मुझे ऐसा लगता है कि यही है पार्टी और यही है फेस्टिविटी और सब कुछ यही होगा. And I have a blast on my shoots. तो मुझे तो हर दिन मज़ा आता है. मुझे वो सुबह 6 बजे उठना बहुत अच्छा लगता है. और मैं कभी मैं इनसे भी पहले पहुँच, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मुझे बहुत मज़ा आता है कि शूट पे आपको सारे जुड़े हुए हों. एंड देन फिल्म क्रू इज़ अ वेरी डिफरेंट क्रू. इट्स नॉट कमर्शियल का क्रू या फिर
Yeah, you know 50 लोगों yeah. से बंध जाते हैं, डेली मिलते हैं ना आप Daily उनसे, तो उनसे कोई शर्म भी नहीं होती, उनके साथ फैमिली बन जाते फैमिली बन हैं. जाते हैं. सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन. सबसे जो बुरा होता है ना वो जब शूट ख़त्म हो रही होती है, तो मैं हमेशा नबील से कहता हूँ कि यार ये भी ख़त्म हो गई, अब क्या करेंगे, बिकॉज यू सी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एंड नाउ इट्स ओवर. आई एम नॉट फॉर रिलीजेस और ये आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे मज़ा आता है जब बन रही होती है. यू एंजॉय द I enjoy the प्रोसेस. process. मायरा, मुझे ये बताएं, वी लिव इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत पसंद है कि ये तस्वीर गई और ये 5,000 या 50,000 लाइक्स आ गए. दैट, और फिर एक तरफ फिल्म है जिसका प्रोसेस इतना लंबा है कि उसका शूटिंग स्पेल महीना 1.5 महीने का होता है, कुछ ज़्यादा भी होता है. फिर उसके बाद आपको वॉइस ओवर भी करना है, फिर आपने इस तरह की पॉडकास्ट भी करनी है, फिर आपने प्रमोशंस भी करनी है, मॉल्स में भी जाना है और फिर जाके आनी है. सो लाइक ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता कि मैंने कुछ किया और आ नहीं रहा? हमारा तो 2.5 साल से हुआ है. No, thank God. I'm not attached to social media at all. At all. In fact, it's I don't know, painful for me to post. But then when it's time for the time you have to do it, I do it. But I'm not attached to that. I think I can say for myself, मुझे लगता है हम ज़रा lucky हैं इस तरह के we saw success Kind of, yeah. without social media. We've know? seen both. So, and yeah, we've seen both. Like so that attachment is not there. Not, I think, our generation, I feel. So it's not there. Even though my brother keeps saying, why can't you just do a YouTube channel? Why can't you be on TikTok? Mahira, it's not uncool. I'm like, it's not about cool. Like, what am I going to do? Do you understand? Like, I don't understand what to do. Even something like, I don't know अगर आपके साथ ये होता है, but when we as an actor, sometimes I think मैं commercial पे जाऊँगी और मैं इस दफ़ा commercial बस मुझे ये पता है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है. I've commercials I've been doing forever, so I can just go there and I just flick my eye. I know everything, but still, because I don't know, I don't know if it's just me, but I'll go there and I'll be like, oh, so this is this type of a girl. Okay, maybe I need to do my hair. Yeah, you're right. And it's like, when do you get out of the actor brain? You know? Like, even on a commercial, I'm thinking, I'll tell my director, don't you think she is from this place so she could do this? And he's probably thinking, यार तुम अपनी ये जो है ना फिल्म में करो. यही है. हाँ. फाद, do you face a challenge कि कुछ एक्टर्स होते हैं वो रोल्स में इतना फंस जाते हैं कि वो फिर वो एक लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे होते कि मैं कब वो एक्टर हूँ और मैं कब फहाद मुस्तफ़ा हूँ और कब मैं वो कैरेक्टर हूँ? मेरा ये बिल्कुल कभी भी नहीं रहा ज़िंदगी में मसला, बिकॉज ही मैंने टीवी पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो उस टाइम पे बहुत हिट थे. जैसे मैं अब्दुल कादिर हूँ मैंने किया था, मैंने एक आश्ती किया था, मैंने एक ट्रांसजेंडर का भी कैरेक्टर प्ले किया हुआ. सो मेरा प्रोसेस उस टाइप का नहीं है कि मैं मार के ही आ जाऊँगा किसी को, या आई एम वेरी क्विक दैट वे. एंड आई थिंक जिस तरह का हमारा काम है ना, यू कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट टू सर्टेन थिंग. यू नीड टू बी अ लिटिल इंटेलिजेंट दैट वे. सो आई move on. So you detach easily from your characters. Because basically. And it helped me. Why? Because अगर मैं किसी एक किरदार पे उसकी सक्सेस पे भी आप फंस जाते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट कि आप उस किरदार में फंस जाते हैं, लोग उसकी सक्सेस में फंस जाते हैं कि बस ये हो गया था ना, या नहीं तुम बहुत किया तुमने काम. लेकिन ऐसा होता है कि फिर आप कहते हैं कि बस अब मैंने तो वो कर लिया, तो अब मैं आगे क्या करूँ. सो आई स्टिल गेट नर्वस. आई ट्राई, आई थिंक इवन मोर हार्डर कि मैं अपने नए कैरेक्टर्स को कैसे करूं. एंड लेटली द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ इज समथिंग समटाइम्स आई डोंट गेट व्हाट टू डू. आई लुक फॉर एक्सप्रेशंस. और वो जो नर्वसनेस होती है ना मेरी एक्टिंग की, मुझे अच्छी लगने लगी है वो, बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर. आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये. So you'd rather stay uncomfortable ताकि आप नई चीजें एक्सप्लोर कर सके, rather than कि नहीं मुझे तो सब आता है. Yeah. I'm the same. I think it should be like that. I'm very always doubtful of what I'm doing, and it's just like, it's very. But I've been with actors which is also great. You get stuck in a method. Even though I have to say, I don't know if you feel that or not, but I get very attached to a certain character. characters. Yeah. Like not obviously Jia, but like
I don't know. When I was doing Ek Hai Nigar, I felt my bones were like feeling the. बट आपकी तो Only बोन that स्ट्रांग time. और आप No, स्ट्रांग no. हैं. What I'm saying is Strong that to me, strong. during I'm that not, I don't endorse it anymore. during that project, it's okay to be a dad. Yes, so But not after that. You know, not you after cannot. that, but it's funny, you know. I feel like someone should do a study on actors. मुझे ऐसा लगता है हम लोग it's a very very mind-boggling place to be. Yeah. Because if you're an honest actor, and most actors I think are honest actors, you actually what you're doing is कि ये किस तरह सोचती है, इस पे ये गुजरी है, ये हुआ होगा, ये हुआ है, ये हुआ है, and you're taking it all in and every day playing her. Because चाहे आप ग्लिसरीन लगा के क्यों ना रोएं, वो आंसू तो आपके हैं और वो निकल रहे हैं, राइट? और वो एनर्जी जब आप हंस रहे हैं या किसी पे चीख रहे हैं, वो आपके हैं and they are you at the end of the day. So it's a very it's almost like a personality disorder, you know, it feels like that at least to me. पर मैं बताऊँ लेटली जो एक्टर्स है ना उनका जितना बिकॉज आई प्रोड्यूस अ लॉट, तो मुझे एक चीज़ जो समझ आती है वो कैरेक्टर प्ले करने पे बिलीव नहीं करते. उनको लगता है कि मैं तो ये नहीं करूँगा, Really? तो वो मैं नहीं होता है. यू नो इट्स अ स्क्रिप्ट. You may not like the script or the story, but whatever the story is, and it has certain characters. और उनके traits ये हैं, you know, it's not Junaid who is going to slap somebody or kick somebody. It's that character, and it must have some sort of significance later. मतलब उसका कुछ तो एक outcome होना है ना, अच्छा बुरा irrelevant. But if you'll think कि जुनैद तो ऐसा नहीं करता, तो जुनैद एक्टर क्यों है फिर अगर वो ऐसा नहीं करता? Are you getting my point? हाँ, you can't judge your Yes, character. the vision should be That's actually exactly. directors You can't- and You can't writers. judge your character. तो आप अगर जज करने पे आ जाएंगे तो फिर तो आप उस कैरेक्टर को प्ले कर ही नहीं पाएंगे. एनी कैरेक्टर, आप दोनों से सवाल है कि आपने वो किया हो और वो आपको बहुत ड्रेनिंग लगा हो. Draining in a good way or a bad way? Either. Do you want to go first? No. I think playing a hero is draining. Really? Always, yeah. क्योंकि सारी फिल्म आपके कंधे पे होती No, है. no, no. फिर It's a certain act, you know. It's like you have to look good, you have to show a certain aura and stuff like that. And playing typical characters, like a supporting actor, I think he must be having a blast. उनको बहुत मज़ा आता होगा करने, because एक तो प्रेशर नहीं है और आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि अगर आप नोट करें जितने भी गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा एक्टर्स होते हैं ना, वो उनका जो लेटर होता है करियर का हिस्सा वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन जो शुरू से ही कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं ना, वो बाद में बड़े उभरते हैं ज़िंदगी. इट्स बिकॉज वो कंफर्ट लेवल से जब आप निकलता है ना, अगर आप आज मुझे बोल, जैसे मैं इंतज़ार करता हूँ उस दिन का कि ये हीरो वाला चक्कर एक दिन मुकना है और उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होनी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, यू नो, बिकॉज आई हैव सो मेनी कैरेक्टर्स टू प्ले एंड आई कैन डू दैट. बट बीइंग अ हीरो देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ, यू नो, तो वो एक बड़ा Certain things you're just always offered. यस, तो वो आपको उससे निकलेंगे आप. दैट्स व्हाई मे बी आई एंजॉयड नामालूम फ्रेंचाइज मोर. इट वाज वेरी इजी, इट वाज फन, एंड देन लोड वेडिंग वाज फन. तो वो बड़ा उस टाइप का रहता है. आप उसमें फंसे नहीं रहते कि यार अब मुझे ये बताना है कि मेरे शॉट से ही पता लग जाएगा कि क्या है ये, तो ये उससे आप निकल जाते हैं. सो ये एक बड़ा एक मुझे लगता है कि माहिरा, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि यू रियली वांट टू डू और अभी तक आपने ना किया हो? एनी ड्रीम कैरेक्टर दैट यू वांट टू डू? No, I really don't have a dream character. ओके. I really don't. I've समथिंग दैट यू थिंक वुड टेस्ट योर लिमिट्स टू द मैक्स, कि अगर मुझे ये करना पड़ा तो मुझे लाइक बहुत जान लगानी पड़ेगी. नॉट दैट यू डोंट ऑलरेडी, बट होता ना एक चैलेंज. I really don't know. I don't think of those things. आई थिंक Weirdly जेन्युइन enough. एक्टर्स ऐसा सोचते मैं नहीं सोच, Okay. बिल्कुल भी नहीं सच बता. सोचती. I hope that people can bring, you know, Yes. different things to me, and I would love to do that. I'll tell you, I had done this. I don't know if you ever saw this short film which Sherry had made. I Prince saw Charming. it, yeah, it's very nice, yeah. Have you seen it? No. It was a very heavy shoot for me. I can never look at it again. Oh, okay. And people tell me it's my best work, and I'm like, really? I can't see it. See, I just sometimes can't you see just have to give yourself to a director or a writer or a story. Actually,
always have to do that. Yeah. I find it strange when people do not submit or surrender. I do. So I do know I do completely. So sometimes it can go wrong, sometimes it'll go right. But you just surrender. और उसमें बहुत मजा है. उसमें एक तरह की freedom भी है. It's not that you're not thinking. Oh, you're always Oh, of thinking. course. Oof. And you're always. And you know it too. Yeah, and the director knows Yes. it too because. But it's just that you just want to trust that. Yeah. person. I don't even look at the monitor lately. It's been 3-4 years. I don't. तो आपने शॉट नहीं देखते आके? नहीं देखता मैं उसका. Okay. मुझे Not मुझे a ऐसा monitor. लगता है कि मुझे अच्छा क्यों लगेगा, समय कुछ तो होगा. So I take director's call. Yeah. If he's okay with it, then उसने जोड़नी है in the end. You know what was hard? Speaking in Punjabi and doing a film. Yeah, of course. I'm sure. Must be. अच्छा, इसके बारे में और बताएं, like what's your character like Quaid-e-Azam Zindabad में? She is like a mix of my manager and Fiza. Okay. Yes. Her personality is Fiza. Okay. Which is, and I love that. She doesn't care, man, woman, it doesn't matter. If you're doing something wrong or if you don't like, she doesn't like something, she'll tell you off right then and there. Okay. Right? In your face है बहुत. Yeah, matlab, it's not even in your face. It's a very smooth way of being someone जो किसी की BS नहीं लेगी. Right? सही है. और जो उसको सही लगता है बस. BS क्या होगा? Bullshit. YouTube है ना? Yeah, it's okay. हाँ, go for it. तो किसी की वो बकवास नहीं लेती. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मेरे मैनेजर की तरह है वो ये है कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, घोड़ा जो भी मिलेगा वो उसको घर पे ले आएगी. Nice. जी. Okay. तो बहुत बड़ी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है. Okay. So she fights for everything that she feels is wrong Right. in the society. सही. Right? सही. So that's her thing. सही. And then she meets. Okay. अच्छा, आपका रोल मुझे इस तरह का लगा कि जितना मैंने ट्रेलर देखा है उसमें वो आप पे इल्ज़ाम लगा देते कि तुमने रिश्वत ली है और वो नोट पे तस्वीर नहीं होती, एंड देन सो इज इट लाइक एंटागनिस्ट के रास्ते से ऐसा लगा है आपको मैं इसी पे वो हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है. सो पीपल हैव ऑल काइंड्स ऑफ परसेप्शंस. सो इज इट लाइक कि वो एंटागनिस्ट वाले एंगल से होती हुई आ रही है और फिर एंड में आपको गुड बॉय दिखाएंगे? देखो एंड में तो आपको टॉप गन में भी पता था कि हाँ, टॉम क्रूज ने जीत के मैं इसलिए मार्वल नहीं देखता. मैं बट या बट जीतना है, हल्क ने जीतना है, आयरन मैन बट देन कैसे जीतना है. हाँ, मैं इस प्रोसेस के लिए देखता हूँ. या फॉर श्योर. तो मुझे लेटली मैं कल भी इनसे ही बात कर रहा था कि मुझे ना बहुत दिमाग लड़ा के फिल्में देखने का शौक नहीं रहा. बिकॉज लेटली स्पेशली इन दिस पेंडेमिक ऐसा लग रहा था जैसे हमने ना कोई डिग्री करनी है इंटेलिजेंट फिल्मों के ऊपर, और अगर आपने उसके बारे में बात नहीं की है तो यू कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस. हाँ, वो प्लेटफॉर्म नहीं देखी तुमने. Oh bullshit. I don't like it. If I don't like it, I don't like it. I can't pretend, No, absolutely. If you don't like something, you don't like something. But sometimes you do as well. So it's the mood. You can't be watching similar kinds of films. But entertainment is something. I used to go to cinema for one reason and one reason only. And that is to get entertained. So if you don't get that, फिर कोई फ़ायदा नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहानियाँ मोरलेस एक जैसी होती हैं, किरदार भी एक जैसे होता है. आप उनको वहाँ तक पहुँचाते कैसे? अगर वो टेक आपका डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है तो ऑडियंस जुड़ेगी. I think people enjoy the journey more. Yes. End में तो it's like You know, शादी. like you said, you आपको know that पता ही है. शादी है. मंजिल शादी है. नहीं, तो एंड में तो है शादी. Really? I mean usually अच्छा. हाँ, but he's right, ना? इसमें हुई है शादी हमारी? नहीं हुई. इसका पार्ट 2 आएगा. Is it like going to be a नामालूम अफराद franchise? If it works, why not? Oh, so like इसमें एंड में कोई ऐसा छोड़ा है शोशा के वहाँ से पकड़ा जा छोड़ना सकता? जरूरी भी होता है? नहीं. बस खत्म हो गई. हाँ. It's a वो character. It can be in any kind of. When it does well, then you. हाँ. But yeah, we have planned one thing. Okay, next time she's going to ride a heavy bike. Oh, really? Are you a bike person? I'm definitely more a bike person than a car person. Okay. Yeah. Do you ride? Well, I learned now to ride a bike for सही the है. film. सही She's है. riding for bike here now these days. Yeah. I'll come to your house, Sure. give you your order. अच्छा Okay, है. So yeah, next time I'll ride the bikes. Okay. For Heavy sure. bike. हाँ? Heavy bike. Heavy bike का मुझे नहीं पता. Bike is bike heavy क्या? नहीं, bike? heavy थोड़ी सी डर नहीं, वो लगता है. वो हाँ. टॉपल बहुत जल्दी हो जाती है. हाँ. I don't know. And you'll have to be with the animals. It's okay. I've heard, पता नहीं, I should mention,
वो क्या शेर वाला पार्ट। क्या डर लगता है इनको? हाँ, तो आपको नहीं लगता मैं कभी ना जाऊं शेर के What पास। is wrong with नो, हाँ, आई नो, आई एम नॉट लाइक कॉलिंग यू के जैसे मैंने डरपोक। दो बातें सुनी ना, एक मेरी, मैंने एक शॉर्ट्स पहन के एक मेरी तस्वीर लगी और पाकिस्तानी टांगे देखो, मैंने कहा किसकी टांगे ठीक है इस हाँ, मुल्क में? हाँ, क्या मैंने था? जिसकी भी Sorry? देखी ये थी, आई पतली रिमेम्बर टांगे। दैट अच्छा, शॉर्ट्स वाली। मुझे हाँ, नहीं याद है। मुझे समझ नहीं आई ये बात, तो मैंने कहा मैं अच्छा, मैंने उस दिन से ना नोट, आई डोंट नॉर्मली नोटिस ये हाँ। सारी चीजें। मैंने देखी हम पाकिस्तानी जेनेटिकली हमारी टांगे ऐसी हैं, हाँ। किसी की कोई ड्वेन जॉनसन नहीं हाँ। फिर रहा है यहाँ पे, गुम मारो टांग पे। तो हम और ऊपर उठा भी नहीं है टांग। मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट भी बना रहे हैं। हाँ। द थिंग इज कि कौन शेर से नहीं डर, कौन है भाई जो शेर से सही Come बात on, है, सीधी बात है। हाँ, डरेंगे हम तो कुत्ते से भी डरते हैं भाई, हम तो डर दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने ये वाली बात की, ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो है वो इट कैन गेट रियली रियली टॉक्सिक एंड हर कोई इसकी जद में किसी ना किसी पहलू से ज़रूर आया है। सो लाइक हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि लोग आपकी स्ट्रगल्स नहीं देखते, लोग एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं कि माहिरा की ये फिल्म आई है या फहद का ये ड्रामा है, जीतो पाकिस्तान आया, दिस दैट। उसके पीछे जितनी स्ट्रगल होती है वो लोग नहीं देखते। और फिर सोशल मीडिया में लोग, पीपल आर वेरी क्विक टू जज। आपकी टांगों पे कुछ नहीं मिला, आपकी टांगें मिल गई, कुछ नहीं मिला आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, यू नो। हाउ डू यू डील विद दैट? यार, आई डोंट कॉल माय ट्विटर और इंस्टा फॉलोअर्स माय फैमिली। My family is my family. They'll stand by me, good, bad, ugly, जो भी situation होगी. So there are people who are interested in you, in your work. इस हद तक ठीक है। वो आपको कभी गाली भी देंगे, वो आपको कभी, तो आप उसको जितना seriously लेंगे. Like my manager keeps telling me, you don't engage with your fans and stuff like that. What am I supposed to do? Like I do almost, or even she, we are the people who are doing ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड इन द कंट्री, और हमारे फॉलोअर्स आपके पॉडकास्ट से भी कम होंगे, आई एम श्योर। लेकिन द थिंग इज, इट्स बिकॉज आप किसी से बात ज़्यादा करोगे तो वो आपसे बात करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म देखें, आपको अच्छी लगे बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छी लगे नहीं लगे। जैसे पुराने एक्टर्स का जो एक वक्त बहुत ज़्यादा था ना, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उनकी पर्सनल एंड प्राइवेट लाइव्स बहुत प्राइवेट इन द ओपन। अब अगर रोज़, जैसे मुझे ये पता है कि मोहम्मद अली साहब आपसे मिलते भी नहीं थे, कि अगर आप उनके घर चले गए उनको बगैर बताए तो वो आपसे मिलेंगे भी। अब मुझे समझ आती है वो क्यों नहीं मिलते होंगे, बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर ऑरा है, वो बिस्तर से उठ के आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। True. ऐसे ही मैं ग्रोसरी स्टोर पे आपके साथ तस्वीर नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खाना लेने गया, मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ, मेरी मर्जी। मैं एयरपोर्ट पे कोई लुक बना के नहीं जा सकता, मैं एक ट्रैवलिंग करने निकला हूँ, मैं पिक्चरें आपके साथ नहीं बनवाने। सो आई कांट से कि जी मैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट येस आई एम अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज आई हैव सीन ऑटोग्राफ्स वाला टाइम भी, एंड आई हैव सीन सेल्फीज वाला टाइम, एंड आई हैव सीन सेल्फीज आउट ऑफ जेन्युइन लव, एंड आई हैव सीन सेल्फीज जस्ट बिकॉज यू आर समबडी एंड आई वांट यू इन माय पिक्चर सो दैट यू आर ऑन माय पेज। हाँ, ये समझ आ जाती है, तो वो इस चक्कर में मैं फिर बिल्कुल ही वो रहता हूँ कि बस ठीक है। ये आपने एयरपोर्ट वाली बात की ना, मैंने नोटिस किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स अक्सर मैं भी ले रहा होता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, वटेवर। तो कुछ एक्ट्रेसेस को मैंने नोटिस किया, वो जान के नहीं जाती जहाज़ में, क्योंकि वो टनल खाली नहीं मिलेगा ना जो इंस्टाग्राम पे आना है, तो वो फिर आवाज़ें लगाते कि भाई मैडम फलानी आप आ जाएं। फिर वो नेम ऑफ कोर्स, वीडियोस नाउ, सो लाइक What do they do? they calling out names and stuff like that. नो, जब आप वो टनल के थ्रू प्लेन में जाते हैं ना, तो वो तो रश होता है वहाँ पे, सो दे सेट आउटसाइड कॉफी शॉप पे कि जब तक वो क्योंकि वो खाली तस्वीरों में अच्छा लगता है, पीछे बशीर भाई होंगे तो वो इंस्टा मोमेंट नहीं बनता ना, तो लोग इतना भी करते हैं। लाइक, Can I tell you, I'm pretty, like I have to say, because it's the truth. I am actually very, very, my manager actually gets really mad with me. Because you do all that. No, I don't do this. But I can be anywhere and anybody can ask me and I'll be like, yeah, I'll give you a picture. And she'll be like, you don't even know who this guy is. do that. You don't. You're not getting but my No, point. I get exactly what you're saying. And I completely, because I also feel that. My private life is super private. Super private. I do not. When I go for holidays, it's not on Instagram. If I do whatever I want to do and I have my own life, it's not on Instagram. But I'll tell you what.
the one time that, and I've gone through this many times, but the one big time that I went through this social media outrage, you know what I realized after that? Because I thought, oh, मेरी जिंदगी खराब हो गई, खत्म हो गई, you know, क्या होगा, ये होगा, because आपको यही लगता है पहली दफा जब आपके साथ इतना ज्यादा होता है ना, आपको लगता है how will I ever recuperate out of this, recover, whatever. And then when you come out of it, you're like, oh. So now when there are little things, और कोई आपके बारे में कुछ कहता है या social media trolling होती है, I'm just like, been there. हाँ, कर लो, 1.5 दिन बाद कुछ और आएगा, 1.5 दिन बाद कुछ और होगा. और believe me, हम सबको पता है, सारे एक्टर्स को, सारी एक्ट्रेसेस को, कि कौन सी तस्वीर लगानी है जिस पे आपको मैक्सिमम लव आएगा और कौन सी. I'm sure इतना तो अब तक पता ही होगा. Obviously, it's so easy, you know. But then again, you know the people who are genuinely. I look for genuine fans. And you can tell. And you know. Trust me. हाँ. And वो अलग ही होता है मान. हाँ. बाकी जो है ना बस एक मैं आपको मजे एक किस्सा सुनाता हूँ. This boy was taking picture with me. And I told him I was in the hospital. And I told him, buddy, don't do this. ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये बाहर बैठा हूँ और ये तस्वीर खींच रहा हूँ. मैं कह रहा तुम्हें समझ नहीं आ रही है यार मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ. And he took this picture and looked at me like that and just went up. I was like, अब उस पिक्चर में तो किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ या क्या सिचुएशन थी. बट ही जस्ट, आई थिंक उसको मैं पसंद भी नहीं था. हाँ. बट जस्ट बिकॉज कि उसने देख लिया था तो ये जो है ना, यू फील सो यूज्ड समटाइम्स. That is a little. I was with my nani. My nani was going away. You know, I was taking care of her in the hospital, and it was me and my khala and my nani, and ek nurse. Wow. Oh yes. Yes. My khala, she had come from me. I cannot believe. I was like, khala, relax. I know, yeah. Oh, she was like, but how? How is it possible? Because you are right now, and I had to, मतलब उस वक्त मैं रो रही थी, मैं परेशान थी, हम अभी लाए थे. You know, it was a tough time. So sometimes ऑपरेशन हुआ एक छोटा सा. मैं ऑपरेशन टेबल से उठा हूँ और उठ के मुझे डॉक्टर तो फिर हो जाए यार, I hate that. और मैं अभी मुझे ना मेरा वो नशा उतरा भी नहीं है. और मैं अब कह रहा हूँ यार इसको मैं क्या अब मैं बोलूँ. एंड दे टुक दैट पिक्चर. और मुझे वो अगले दिन मैंने बताया सबको कि यार मेरे साथ उसने ना ये भी कर लिया है अंदर. मतलब मैं उठा हूँ और मैंने बेसिक एथिक्स, ये एथिक्स ये खत्म हो गई. हाँ. मैं चले आप लोग आप तो चले यू वर अटेंडिंग. आई वाज ऑन अ व्हील चेयर. दिस वाज इन December बिकॉज ऑफ मसल स्पैज़म. मैं बिल्कुल हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. तो माय फ्रेंड वाज रोलिंग मी इनटू अ हॉस्पिटल. उसमें भी आके जो है भाई एक सेल्फी. मैंने यार मैं व्हील चेयर पे हूँ. हाँ कोई मसला नहीं, बस आप बैठे रहे. नहीं वो कह रहे आप बैठे रहे. मतलब मैं खड़ा हो भी नहीं सकता. मैं खड़ा हो सकता, मैं चला जाता. मैं खड़ा हो सकता, मैं चमाड़ मारता, लेकिन मैं नहीं कर सकता. तो लाइक पीपल उन लाइक लोगों को बस ये हो गया कि यार मुझे अपने लाइक्स चाहिए. आई डोंट केयर वेयर यू आर और विच मेंटल स्टेट यूर इन. लोग खाने से उठा लेते हैं. मैं एक बार कढ़ाई खा रहा था, उंगलियां मेरी कढ़ाई के अंदर थी, आके हाथ मिला रहे. मैंने भी ना घी वाले हाथ में लाए. मैं ला जा कढ़ाई नहीं खाई है बाहर बैठ के. आपको पता है मुझे बहुत शौक है. हाँ. तो मुझे उसके लिए कोई 15-20 लोग लेके जाने पड़ते हैं ताकि आपको कढ़ाई इतनी महंगी पड़ती है. बरकत बढ़ जाती है. But yeah, you're right. It's very unfortunate, but I think that's what it is now. So like अब इसमें यही होता है जैसे आपकी मैनेजर ने कहा कि यू नॉट सपोज टू डू दैट. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं, एजेंसीज वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस. उनको अपने साथ लेके चलना है. वो फैमिली है आपकी, वो बददिल हो जाएंगे. नहीं लेकिन मेरा मैनेजर मुझे एक बात कहता है. मैं हर 15-20 दिन बाद उसको कहता हूँ ये मेरा इंस्टा तो मिटाओ यार सबसे पहले. उसके बाद भी नहीं, सुबह बात करेंगे, विल टॉक इन द मॉर्निंग. क्यों? आप समझ नहीं रहे. एंड he is right. Because all the deals that we make वो somehow they are connected to this thing. तो आपको either हैं आपके या नहीं हैं, लेकिन वो आपको करना पड़ता है. But I'll tell you what says, not this kind of her problem is, I mean these are like, I don't know why I have these fans. They're fans, right? But they come like they'll find me on a set. Yeah. Okay. Somewhere.
anywhere. I was shooting train ki patri pe for another film. Yeah. And I swear, I could hear Mahira. I was like, I'm not going crazy, am I? यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ Hallucination. trust है or whatever. I know. मैं देखती हूँ एक लड़का उस पटरी पे भागता हुआ आ रहा है, and this is a very normal thing that happens when I'm okay. There's one boy or one girl who's like, so I said, Sarah's like, stop it, stop! You're not going to turn around. You're not going to do it. I was like, but he's calling out my name. I don't know. What if he needs something? I don't know. Turn around, wait, red muffler में और ये वो. Take me with you, Mahira, please. Take me with you. कहाँ पे? But take me home. Take me with you. वाह. फिर हम जा रहे हैं और फिर उन्होंने, this is a true story, आप बाब इनसे सुनिएगा, रेड मफलर निकाल के take my. Oh wow. ये तो ले लो. So this is a very normal thing that I, by the way, I have these kind of like. साहब के बहुत सारे मफलर हैं. मेरे पास रुमाल. I like that. इस तरह के लोग फिर भी अच्छे होते हैं ना. हाँ. किस तरह के? Genuine मोहब्बत करते हैं. हाँ. Oh my God. अच्छा, इन दी एज ऑफ सेल्फीज अगर मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगता ना, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ. मैं कहता हूँ मैं फिर कहानी, मैं लंबा उसके कहानियाँ लिखता हूँ. I wrote the other day, if you need a good friend, all you have to do is you need to have a book. मैंने कहा, what the hell am I doing? I also write along, because you know we are so out of all this, ये practice ही खत्म हो गया. So like वो मुझे एहसास होता है कि वो अपनी सोशल मीडिया लाइक्स के लिए नहीं आ रहा, वो अपने लिए आ रहा है. न्यूज़ ब्रेक करनी. But you know, for us, I'm going back to what I'm saying. Actually, sometimes it can be a little scary also. Of course. Because people like me, I'm very like trusting. Like, आज वो fan आया हुआ है, उसको बुला लो जल्दी से गाड़ी में. ऐसी है, बहुत ज़्यादा ऐसा है. हाँ. So now, you know, I have to be, and I think we all should be a little. Yeah. Because it can be. It can go either way. I was in Chicago और मैं वहाँ से खिड़की से दिखा रहा था कि so somebody figured out कि ज़ारा के सामने होटल है. No way. तो वो नीचे आके बैठ गया. बिल्कुल. रोजाना 3 घंटे. आप तो ये करते हो, मुझे लोग फॉलो करते हैं वहाँ तक जहाँ तक मैं चाहता हूँ. It's scary. हाँ. This happened when अल्लाह तुमको जन्नत नसीब करे, सिंगर साबरी साहब. अमजद साबरी. Shot that. तो उस टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब भी था. तो मैं आपको बता रहा था कि गार्ड नहीं रखते. गार्ड मेरे साथ नहीं होता. तो अब मैं जा रहा था एंड आई थिंक मैं ARY ही जा रहा था. तो 2 लड़के बाइक पे, और अचानक से ना मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल बराबर में, और उन्होंने यूं किया और उन्होंने यूं हाथ एक लड़के ने निकाला. लाइक ओ माय गॉड, इसने कर देना है. और वो फोन निकाल उसे शूट ही किया एसेंशियली. और मैं आपको बता नहीं सकता, आई वाज इन अ ट्रॉमा एटलीस्ट कोई 1.5-2 घंटा. मैंने कहा यार ये तो इट्स दैट इजी, क्योंकि हम तो जिस सोसाइटी में हैं और जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, फोन्स और गन्स में मुझे कोई फर्क जो है ना वो नजर नहीं आता. You shoot with both. Yes, absolutely. Mahira, you've had a long journey, of course, and so did you. एक पूरे process से आए. You know, you've done VJing, you've done film, you've done drama, you've done advertisements, and like वो पूरी journey it culminated into who you are today, right? इसी तरह फहद आपकी भी एक पूरी एक journey है, ठीक है? As opposed to that, I agree, टेक्नोलॉजी बदल गई है, ज़माना चेंज हो गया है. जिस प्रोसेस से आप गुजरे, आजकल बच्चे they just have to be discovered on TikTok or they discovered on Instagram and boom, they're everywhere. So do you feel कि you were disadvantaged at some point? Again, not your fault, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, या do you think कि because ये लोग उस रॉ प्रोसेस से नहीं गुजर रहे जिनसे आप जो कहते हैं ना रगड़ा लगा है, बिल्कुल, तो पका पकाया जो मिल रहा है तो वो उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे. और अभी तो हमें बड़ा हंकी डोरी लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बट लाइक 5 years 10 years डाउन द लाइन, हाउ विल दीज पीपल कोप विद दिस? मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर या किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी इंसान की जर्नी जो होती है, प्रोफेशनल जर्नी, वो आप तब एक्चुअली उसको देखते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं जब when it's really, you know, sort of at the end, right? And if you think about the people that you like or I like or he likes or look up to, उनकी बड़ी लंबी जर्नीज रही हैं, लंबे एक्टिंग करियर्स, लंबे.
इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टार्स थे, इसलिए कि वो लंबी रेस के घोड़े थे, वो उन्होंने काम किया और काम करते रहे, हिट फ्लॉप ये वो, बैड टाइम्स गुड टाइम्स, डिप्रेशन नॉट डिप्रेशन, you know, God knows what all we all have gone through, and you keep on working because that's your job and that's what I believe I'm meant to do, right? I think something like this, my only thing is कि will they be able to last? Will it be a short stint? Because if what I think now, आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए because I'm pretty bad with social media, but मुझे ऐसा लगता है there's always a flavor of the month. But flavor of the month means you are just a flavor of the month. You must not be the flavor of the month. वो कहते मैं अक्सर आई ऑलवेज से कि मशहूर होना मुश्किल नहीं, मशहूर रहना मुश्किल है और उसको मेंटेन करना। और उसको जी कभी कभी मैं I don't know if I should say this, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलती है वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है, एक्चुअली वो टेस्ट होता है, यू नो। And is it for the right reasons or not? One needs to evaluate that also. Like, I can be famous if I take my pants off tomorrow on Insta, you know, that's an easy way to go about it. But then लोग again, बोलेंगे टांगे ऐसी हैं। That's what I'm saying. It's so I'm sorry. I'm just telling you something. This is what's happening. See, you know what I mean. I And hope then- that's all they're gonna say. And unfortunately, my body of work is compared to that person or that whoever that is. यार वो और आप में वो भी तो मशहूर है. So you see, you can't do that. घोड़े गधे, I'm not saying कि मैं गधा भी हो सकता हूँ, लेकिन इस गधे की एक जर्नी है. और फिर ये भी बहुत गलत है. लाइक आई प्रोड्यूस अ लॉट, आई गेट इट. दीज न्यू एक्टर्स दे आर इन लॉट ऑफ प्रेशर, वी वांट, एंड शायद हमारी वो ऐसी ट्रेनिंग हुई है या हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं कि हमें प्रेशर का फर्क नहीं पड़ा. किसी ने बुरा भी कह दिया, इट्स ओके यार, ठीक है, एक अच्छा काम आएगा, याद रह जाएगा. ये दे आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड एवरी सिंगल डे, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क. They rely more on their statements and what their thought process is, opinion क्या है, what cause are they work. भाई, causes can be your personal thing. It cannot be your it thing. You know, you cannot lose the track. I came in this industry because I love acting. I want to tell stories. Yes, I want to do something good in my life. मैं associate हो जाऊँ, but मैं अचानक से switch नहीं कर जाऊँगा कि अब इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, इधर से ही बात हो रही, तो अब इसी को कंटिन्यू कर. सो अगर जिसका भी करियर ज्यादा चला है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज उसको उस काम करने का शौक है, उसको मशहूर होने का शौक नहीं है. दैट्स इम्पोर्टेंट. उसको उस काम का so शौक. important. अगर आपको मशहूर होने का शौक है, वो तो that's a फिर you're a lost cause. बिल्कुल. And by the way, there have been people, very talented people, who've come out of the social media age also. Yes, of course. Of course. Of course, it's है, like अभी भी हैं. of course. थोड़ा सा ना मुझे लगता है अपब्रिंगिंग, थोड़ा सा आपका कैरेक्टर बिल्डिंग अगर नहीं हुई भी हो सही से, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ना हो. अच्छा बुरा देखें, चाहे सोशल मीडिया पे है या कहीं भी है, उसको पता तो है ना. ये तो नहीं हो सकता कि उसको अच्छे बुरे. ये क्या हो जाता है कि टीवी पे सब अच्छा अच्छा चलेगा और सोशल मीडिया पे सब बुरा चलेगा. ये तो कोई समझ ही नहीं आती. तो मुझे इसलिए ये बात समझ नहीं आती है कि मैं आपके शो पे यहाँ गाली दे सकता हूँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा. ये होगा, लेकिन अगर मैं कल को जीतो पाकिस्तान पे खड़े होकर गाली दे दूंगा, फैमिलीज बैठी थी सामने, क्या हम फैमिली नहीं है क्या? अब ये तो तुम बताओ. मैं एक फैमिली नहीं हूँ. मैं क्या हूँ? ये सारे फैमिली So are you getting my point? हाँ. तो अगर आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं लेटली इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज इट्स so easy out in the It's what they they were cannot born say in. yes. Think about it. They Like cannot say no to it. If somebody is telling you मैं तुम्हें कल 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुमने एक बात कहनी है, कौन पागल है जो बोलेगा यार कि मैं नहीं करूँगा. तो वो उनके लिए ये गलत नहीं है, बट अब उसको लेके आप आगे आप साथ में काम भी करें. सिर्फ मैं ये कहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी. आई डोंट इवन नो व्हाट अ सेलिब्रिटी इज. Either you're an actor, you're a director, also, you're a producer. I don't even know how we got famous. See, because we were Like, not looking for it. you know? हाँ. आप उसके लिए नहीं काम We're कर रहे famous. थे. वो सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं हाँ. कि मशहूर होना है.
तो फिर मशहूर होने के लिए तो आप अच्छा, अभी आपने बात की ना कि आजकल आपको लगता है जो पीपल हु आर कमिंग आउट देयर इन अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसकी एक वजह ये नहीं हो सकती माहिरा, बिकॉज कि अगर इफ़ लेट्स से मुझे आपकी वीजिंग नहीं पसंद आती 2007 में, तो मुझे रिक्शा लेके आना पड़ता जियो के दफ्तर कि जी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, आज मैं यूं करके लिख सकता हूँ. सो फीडबैक जो है ना वो बहुत तेज़ आ गया है. पुराने एक्टर्स को फीडबैक नहीं मिलता था क्योंकि आपको लोगों ने जितना भी कुछ कहा हो सोशल मीडिया पे सामने कभी नहीं कहा होगा, राइट? आई टेक इट लाइक इलेक्शन. तो डोंट यू थिंक मगर ये मैं जो भी आपको एक प्रेशर पे इसलिए आ रहे हैं बिकॉज द फीडबैक इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो मगर मैं क्विक. आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त इस कमरे में जो भी बैठा हुआ है, लेट्स से उसको मैं या फहद नहीं पसंद, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मुझे आँख के सामने नहीं कहेगा. यस. तो द ट्रूथ इज कि वही बंदा जो आपको गालियां लिख रहा है, अगर मैं उसके सामने आ जाऊं, उसकी हालत वो मफलर देके जाएगा. मफलर देके जाएगा. लाल बिल्कुल. वाला. So that is it. And I wish that, and you'll see, I have this feeling. I don't know if I should. Yeah, I think that social media and social media stars will be a thing of the past. I feel I think it'll phase out. very very soon. And I tell you why. I have a different theory about this. It's like आप AGT देखते हैं, उसमें 3 जज बैठे होते हैं. वो सारे लोग वहाँ जज क्यों कर रहे हैं बैठे हुए? वो सोशल मीडिया पे नहीं है लोग. उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे What is this? कोई भी शो या Okay, कोई अच्छा. इट्स लाइक मेटाफोरिकली है. अच्छा, okay. सो जिस प्रोसेस से मैं गुजरा उसमें देयर वाज दिस पर्सन, इकबाल अंसारी साहब, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सालों से काम किया था. देयर वाज बुशरा अंसारी. दीज वर द पीपल हु वर इवैल्यूएटिंग माय ऑडिशन इन द फर्स्ट प्लेस. लोग जो अपने क्राफ्ट में मनवा चुके हैं अपने आप को, वो अगर आपको जज करके आपको आगे भेजते हैं ना, तो वो बहुत सारे लोग फिल्टर आउट भी कर ले. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस गाय वर्किंग विद मी इन द सेम सीरियल, माय फर्स्ट सीरियल. इकबाल साहब नेवर यूज्ड टू टेल मी एनीथिंग, एंड मैं उनसे पूछता था, सर आप मुझे कुछ पता नहीं रहे हैं. देयर वाज दिस अदर गाय, और उसको ना बताते रहते, तुम ये करो, अब तुम ये करो, और मुझे ना साइलेंट नहीं होता, एक लुक भी नहीं दे रहा. सो मैंने उनसे एंड में कहा, मैंने कहा सर आपने कभी कुछ बोला ही नहीं. कहता तुम देखना तुम कहाँ होगे और वो कहाँ होगा. अब ये आँख जो है एक आदमी की जिसने इतना काम किया हुआ है, इट्स लाइक शोएब साहब टेलिंग यू और हिज जस्ट कॉलिंग यू इज समथिंग दैट ही सॉ समथिंग इन यू. सो अगर वो आपको नहीं कॉल करते तो दैट्स रिजेक्शन देयर एंड देन, एंड यू आर ओके विद इट बिकॉज एक ऐसे आदमी ने आपको बोल दिया. अब आप किसका रिजेक्शन लेंगे और किसकी एक्सेप्टेंस लेंगे जिसको पता ही नहीं है, जिसका ये काम ही नहीं है. सो आई थिंक ओपिनियन तब होना चाहिए आपका जब आपने कुछ जिंदगी में अचीव किया. एटलीस्ट आपके पास एक कार्ड होना चाहिए कि आई एम एन अचीवर, आई हैव डन दिस सर्टेन थिंग एंड नाउ आई एम. You know who said this? One of the famous actresses or someone said, every account should be verified. मजाल है कि कोई. हाँ. What if that happens? मैंने तो साइबर क्राइम को पेच किया था एक शो कि हम जो इस तरह का आते हैं ना सेलिब्रिटीज, खासतौर पे खवातीन के कमेंट सेक्शन में उनके घर पहुंचते कैमरा लेके. हाँ बिल्कुल. हाँ जी, क्यों कह रहे थे आप, आए जरा. बिल्कुल. तो वो फिर थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा. अभी जो आपने ये वाली बात की ना आँख वाली, सो आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दिस good friend of mine. We haven't met in a while. He's a music producer and he was one of the key persons जिन्होंने फ्यूजन को फ्यूज किया था. तो उस वक्त not Shalom, Khurram Jamshed, he was their friend. तो like he was friends with Shalom, he was also friends with Shafkat. So फ्यूज करा दिया. उन्होंने मुझे एक बार, हम लोग we used to meet, I knew him through a musician friend. तो उन्होंने मुझे ना एक बार ऐसे ही हम सदर में कोयटा होटल में बैठ के चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना एक आर्टिस्ट हो तो किसी आर्टिस्ट से शादी करना, 9 to 5 वाली औरत से नहीं करना. मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ. कह रहा नहीं तुम हो, तुम्हें पता नहीं है. तो मेरा वजह क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है. कह रहा है वो तुम ना उस टाइप के बंदे हो जो रात को 3 बजे उठ के ना दीवार दिखेगा, तो वो जो 9 to 5 वाली खातून होंगी ना, वो बोलेंगी सो क्यों नहीं रहे, पागल है, सुबह दफ्तर जाना है, तुम पागल हो. तो उन्होंने मुझे उस वक्त ना मेरा कोई यूट्यूब से ताल्लुक था, कुछ भी नहीं था, बट लाइक ही सेड. तो आपने जैसे भी ये बोला, आपने आर्टिस्ट से शादी की है? नहीं, HR. चलो नहीं. चलो मतलब पूरी स्टोरी मैं अभी सी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है. नहीं, बट वो ह्यूमन रिसोर्स तो वो अच्छा मैनेज कर ही लेते हैं. हाँ, हर किसी का अलग अलग जर्नी है. ट्रू. हम उसको इवैल्यूएट, हमारा एक अलग नजरिया है देखने का, बट व्हाटएवर वर्क्स फॉर श्योर. एक्चुअली आई थिंक इट्स अ नाइस बैलेंस. या 2 आर्टिस्ट जो है ना,
हाँ आई थिंक वो भी कभी बहुत और क्लैश हो एक और जाता है. चीज़ जो मुझे आसिफ रजा ने बताई थी, he's like, listen, remember. Never marry an actor. Yeah, it was about some relationship that. So he's like, there can't be two rock stars in one relationship. Hmm. One rock star per relationship. Actually, what he was, I think, one artist per relationship. दो artist ब्लास्ट आप हो सोच जाएगा. सकते हैं. आई रिसेंटली इंटरव्यूड समवन और वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं अपनी अपनी राइट में देर सुपरस्टार्स. तो मैंने उनसे यही सवाल किया था तो वो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई मसला नहीं होता, उसकी अपनी जर्नी है मेरी अपनी जर्नी है. हाँ तो खैर अच्छा आप दोनों से एक लास्ट सवाल बिफोर वी रैप. लास्ट सवाल ये कि आप दोनों, वो कहते हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट ने कहा है कि योर बिगेस्ट सक्सेस इज योर बिगेस्ट फेलियर बिकॉज यू आर ऑलवेज मेजर्ड अगेंस्ट दैट कि इज इट एज गुड एज बोल, इज इट एज गुड एज जीतो पाकिस्तान, लोग उसी से कंपेयर करते हैं. सो what do you think, have you reached that pinnacle या आपको लगता है आप हर उसको एक सेपरेट एंटिटी लेके चलते हो, या आपको लगता है कि यार द बिगेस्ट वर्क दैट आई हैव डन इज बिहाइंड मी? Do you feel that way? Not at all. Not at all. I still feel like, I still sometimes feel like a 13-year-old girl who just wants to be in a big film or even a small film. I swear if I wasn't an actor, I'd be acting in front of the mirror all the time. I just enjoyed it so much growing up that it's a dream. I love it and I'm grateful for it. You know, I saw an interview of mine and I'm like really young. How cute is that? Yeah, I saw it. Someone tagged me. And I'm like, it's such actually a cute interview. I know. Okay. Thank you very much. But I'm saying in that interview because मुझे नहीं लगा था कि मैं बोल के बाद कुछ और करूँगी. सही. ठीक है, और उसमें मैं कह रही हूँ this was my dream to act and I've gotten it and after this जो भी मुझे इसके बाद मिलेगा वो बोनस है. Okay. So actually I should remind myself. Absolutely. Of that. So everything. There is no high pinnacle, this, that. There'll be many. And I have... Inshallah. Inshallah. Lots of mountains to climb. फहद आपको तो नहीं प्रेशर होता कि लोग बोलेंगे यार इट्स नॉट एज फन एज जीतो पाकिस्तान? I believe in the process. I enjoy it. As long as I'm enjoying it. मुझे मज़ा आता है. जीतो पाकिस्तान मैं 9 साल से कर रहा हूँ. मैं हर फिल्म ऐसे करता हूँ जैसे ये मेरी आखिरी फिल्म होगी. क्या पता, और जिस मुल्क में हम रहते हैं यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, कौन सी चीज़ बंद हो जाए, क्या सिचुएशन हो. सो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत एक्सेप्शनल इस मुल्क में एक एक्टर हूँ जिसको इतनी फिल्म्स भी करने को मिल गई, जिसको ऐसे शोज़ भी मिल गए, जिसने प्रोडक्शन भी इतनी कर ली. सो मैं तो जब आया था कल somebody was talking about मुशर्रफ साहब, he's not feeling well. So I just want to say कि I just want to thank him because हम आज सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो मुशर्रफ साहब के वक्त की प्रोडक्ट हैं. उन्होंने इन चीज़ों को करियर बनने दिया. सो आई थिंक हमने तो सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, और अभी भी जवान हैं. सही. Any words to your fans about Quaid-e-Azam Zindabad? No, just come and watch it and bring everybody. I don't know which one is my camera, but ye wala. Yeah, and that's it. Quaid-e-Azam Zindabad this Eid. Quaid-e-Azam Zindabad. देखें. Not because it's a Pakistani film, but it's a good film. So you should watch it. Inshallah. Thank you so much. Thank you, Mahira. Thank you, Fahad. It's Thank been a you, sir. pleasure It was interviewing fun. you. Thank you. Thank you. You didn't ask any tricky questions. मैं नहीं पूछता. What were you? I was just fishing. Oh, you were. You were fishing? I don't know. मैंने कहा पता नहीं because No, you see, no, no, I'm no. told that YouTube and everything. YouTube No. is scary. So I've had Ali Azmat, I had Bilal Maqsood, Shalam. मैंने तीनों से ये ज़रूर पूछा कि बैंड बना कैसे. मैंने किसी से भी नहीं पूछा टूटा क्यों, किसकी वजह से. बिकॉज आई डोंट, एक पेनफुल एक उनकी मेमोरी होती है. आई डोंट लाइक डूइंग That's so दैट. interesting that you're like that. हाँ मैं नहीं करता कि वो अच्छा हुआ क्या था, सलमान अहमद ने कुछ किया था क्या. तो आई एम नॉट लाइक Also, दैट. can I tell you, I don't watch the show or anything, but I've seen this. It's where you talk about the plastic bags. हम सबके घरों के किचन में एक बड़ी प्लास्टिक की थैली है जिसका काम ही यही कि उसके अंदर मजीद प्लास्टिक की थैलियां डालें. हम वो फेंकने को तैयार नहीं है. Right? It's you, right? प्लास्टिक बैग कौन सा वाला? Stop recording, is it? We're done, right?
Alright, so ये थे माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द पॉडकास्ट. और फिल्म देखना नहीं भूलिएगा. ईद उल अज़हा पे आ रही है क्वाइद-ए-आज़म जिंदाबाद. नबील कुरैशी इज़ ऑलवेज हमेशा उन्होंने ही इज़ हिट आउट ऑफ द पार्क एंड आई हैव हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी. इंशाल्लाह मैं भी सिनेमा में ही मिलूंगा आपको. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़. Thank you.